خون اچھالا ہے گلیوں میں اپنا ہنڈولا توڑا ہے، چھینٹ نہ تھی دامن پر اس کے کون گھاٹ دھو بیٹھا تھا، جسے سمجھتے ہو ناممکن وہ اس انسان جیسا تھا، انسان بھی اتنا معمولی جیسے اپنا ہمسایا، اپنی شعر سنانا اس کا اور خود حیران ہو جانا، باتوں میں معصوم مہک تھی آنکھوں میں بے چین لپک، خاموشی کے وقفے یوں جیسے اس نے کچھ دیکھا تھا، پیڑ بہت جھیلی تھی اس نے اتنی بات تو ظاہر تھی، لہجے میں شوخی تھی جیسے راکھ میں چمکے انگارا، اور سنگم کے پانی پر میں نے دیکھی تھی کیسی تصویر، اڑا لہک کر ایک جل پنچھی کھینچ گیا پانی پہ لکیر، جمنا کی نیلی گہرائی بھید بھری چپ سے بوجھل، گنگا کے دھارے کی جنبش اجلی طاقتور بیکل، اس پانی میں عکس ڈالتا آسمان کا ایک ٹکڑا، مٹی کے بت ہرے ناریل چندن لگا کوئی مکھڑا، دو دھاروں پر ناؤ کھیتا سوکھا پنجر مانجھی کا، دان کے پیسے گنتا پنڈت تانبا سورج سانجھی کا، جمنا پر مینار قلعے کے گنبد کا ترچھا سایہ، پاکستان سے آئے مہاجر گیندے کی ٹوٹی مالا، پانی میں چپو کی شپ شپ باتوں کے ٹوٹے ٹکڑے، یہیں کہیں پر ہم سے اوجھل سرسوتی بھی بہتی ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، جو سمجھی جو آگے سمجھوں، چھلک رہا ہے دل کا جام، وہ منظر جو خود سے بڑا تھا اس کا گھیر تمہارے نام، اور یہ کمرے کا ماند اجالا باہر ہوک پپیہے کی، کھڑکی پر بوندوں کی دستک سانسیں بھرتی خاموشی، پوری بات نہیں بتلاتا گونگے آنسو رو دینا، تیری دھرتی سہ نہ سکے گی اتنے حسن کو کھو دینا، اور تنہا اور اپاہج بوڑھے تجھے نہ مرنے دیں گے لوگ، ابھی تو جیون بانجھ نہیں ہے پھر تجھ کو جنمیں گے لوگ۔ واہ 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 واہ۔ اسی ماحول میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جشن بہار کا تاج محل اب آراستہ ہو ایک ایسی خوبصورت شخصیت اور خوبصورت آواز سے کہ جس نے جب دنیا کا دکھ درد، انسانیت کا دکھ درد گنگنایا، غزلیں لکھیں، نظمیں لکھیں، تو انہیں مہندی حسن نے، لتا منگیشکر نے، غلام علی نے اور ہندوستان کیا دنیا بھر کے نغمہ گلوکاروں نے انہیں گنگنایا ہے۔ وہ شخصیت ہے جناب فرحت شہزاد کی۔ آپ کو جگاتے ہوئے، آپ کے جاگتے ہوئے ذہنوں کی نظر یہ چار شعر کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی اجازت سے کہ سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں بٹ گیا، واہ، سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں بٹ گیا، وطن زمین ہی رہی، میں سرحدوں میں بٹ گیا۔ واہ، سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں بٹ گیا، وطن زمین ہی رہی، میں سرحدوں میں بٹ گیا، ہزار نام تھے میرے، ہزار نام تھے میرے مگر میں صرف ایک تھا، ہزار نام تھے میرے مگر میں صرف ایک تھا، نہ جانے کب میں مسجدوں میں مندروں میں بٹ گیا۔ ہزار نام تھے میرے مگر میں صرف ایک تھا۔ اگر اس طرح سے سنیں گے تو میں چار شعر سنا کی اجازت چاہوں گا، ذرا سن کے اچھے سے۔ دلی میں کھڑا ہو کے شعر سنا رہا ہوں آپ کو، یار پتہ تو لگے مجھے۔ ہزار نام تھے میرے مگر میں صرف ایک تھا، نہ جانے کب میں
सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा, सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा, बचा लिया था रहजनों से, रहबरों में बट गया। सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा, अरे बचा लिया था रहजनों से, रहबरों में बच गया। और वसीम भाई, मैं जख्म आदमी के दुख समेटता रहा। क्या कहना है? मैं जख्म आदमी के, मैं जख्म आदमी के दुख समेटता रहा। खुदा जो मस्जिदों में था, नमाजियों में बट गया। अच्छा है, वाह वाह वाह। मैं जख्म आदमी के दुख समेटता रहा। वाह वाह वाह। खुदा जो मस्जिदों, अगर इजाजत दें तो गजल पेश करूं या इजाजत चाहूं? मैं पेश करता हूं। लड़खड़ाते हुए कदमों को संभाला जाए। दिल्ली में शेर सुना रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये इज्जत का सवाल है। लड़खड़ाते हुए कदमों को संभाला जाए। नशाए मैं से अना जिस्म निकाला जाए। लड़खड़ाते हुए कदमों को संभाला जाए। नशाए मैं से अना जिस्म निकाला जाए। और काम, देखिए आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं ये शेर के काम सूरज का फकत शब को सहर करना है। वाह वाह। काम सूरज का फकत शब को सहर करना है। अब ये किस्मत कि किधर दिन का उजाला जाए। वाह 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 वाह। काम सूरज का फकत शब को सहर करना है। अब ये किस्मत कि किधर दिन का उजाला जाए। और एक शेर मैं जिंदगी का पेश कर रहा हूं, मेरी जिंदगी का। बिन तेरे यूं है कि जैसे मैं कभी था ही नहीं। बिन तेरे यूं है कि जैसे मैं कभी था ही नहीं। अरे हार कर चांद, कहां चांद का हाला जाए। बिन तेरे यूं है कि जैसे मैं कभी था ही नहीं। वाह वाह वाह। हार कर चांद, कहां चांद का हाला जाए। और एक शेर दिल्ली के लिए देके जा रहा हूं, जरा देखिएगा कि जिंदगी भर का सफर, जिंदगी भर का सफर साथ कटा है इसके। वाह। जिंदगी भर का सफर साथ कटा है इसके। लाश के पैर से कांटा ना निकाला जाए। वाह वाह वाह। जिंदगी भर का सफर साथ कटा है इसके। लाश के पैर से कांटा ना निकाला जाए। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह वाह वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हम तुमको खबर हो
अजीम शायर मिर्जा गालिब को ETV उर्दू का खिराज अकीदत प्रोग्राम यादगार गालिब 29 दिसंबर बरोज इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मैं ये चाहता हूं कि आपकी मुलाकात उस शायर से कराऊं कि जिसकी पसे पुश्त अदब की तारीखें, शेर का हुस्न, वतन की मोहब्बत के ऐसे किस्से कि जिनसे नई नस्ल तहरीक पाए, लेकिन उन तमाम नामवरी और बुलंदियों के दरमियान जिन्होंने खुद को खुद तराशा और तराशने के बाद वो एक शायर भी हैं, एक नगमा निगार भी हैं, सच्चाइयों के अलम बरदार भी हैं, एक सियासतदां भी हैं। बल्कि सियासतदां, मैं ये लफ्ज वापस लेता हूं, सियासत को वो हुनर सिखा रहे हैं ईमानदारी का और इंसानियत का। वो शख्सियत जनाब जावेद अख्तर की है। फिल्म से इल्म तक और अदब से मोहब्बत तक एक ही नाम, जनाब जावेद अख्तर। कुछ गजल के अशार सुन। बरसों की रस्म राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। बरसों की रस्म राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। बरसों की रस्म राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। गिरहें पड़ी हैं किस तरह, ये बात है कुछ इस तरह। गिरहें पड़ी हैं किस तरह, ये बात है कुछ इस तरह। वो डोर टूटी बारहा, हर बार हमने जोड़ दी। उसने कहा कैसे हो तुम, बस मैंने लब खोले ही थे। उसने कहा कैसे हो तुम, बस मैंने लब खोले ही थे। और बात दुनिया की तरफ जल्दी से उसने मोड़ दी। उसने कहा कैसे हो तुम, और मैंने लब खोले ही थे। और बात दुनिया की तरफ जल्दी से उसने मोड़ दी। कल जहां दीवार थी, है आज एक दर देखिए। क्या कहना। कल जहां दीवार थी, है आज एक दर देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए। वाह। कल जहां दीवार थी, है आज एक दर देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत। वाह। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत। पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। वाह 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 वाह। पुरसुकून लगती है कितनी वाह 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 झील के पानी पे बत। पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। छोड़कर जिसको गए थे आप, कोई और था। वाह। छोड़कर जिसको गए थे आप, कोई और था। अब मैं कोई और हूं, वापस तो आकर देखिए। छोड़कर जिसको गए थे आप, कोई और था। अब मैं कोई और हूं, वापस तो आकर देखिए। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में। अच्छा। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में। दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। अच्छा। वाह 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 वाह। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में। दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। वाह। जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। वाह। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। क्या कहना है। वाह वाह। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं। वाह 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 वाह। मुझे
दुश्मन से भी खुददारी। खुददारी की उम्मीद रहती है। वाह वाह वाह। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। वाह। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब है सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब है सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते कर हम तो क्या बताते। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। भला हो सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते कर हम तो क्या बताते। भला हो सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। अब उल्टा हमसे तो ये न पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। अब उल्टा हमसे तो ये न पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों है। न फिक्र कोई, न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई, न आरज़ू है। न फिक्र कोई, न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई, न आरज़ू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। न फिक्र कोई, न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई, न आरज़ू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। मैं एक नज़्म है जो मैं चाहता था कि इन्हें सुनाऊं, इसलिए कि आप लोगों ने शायद पहले सुनी होगी, इन्होंने नहीं सुनी है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मगर मैं कब से सफेद खानों, स्याह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूं। मैं सोचता हूं ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं, खिलौने हैं, तो जीतना क्या है, हारना क्या है। न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की, न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। वाह। मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर सचमुच के हैं प्यादे, और उनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है। क्या कहना है। वाह वाह। अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। वाह 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 वाह। नगमा निगार और शायर जनाब जावेद अख्तर के बाद मैं बर्रे सगीर की उस शायरा के हुजूर हल्फ इल्तिमास लेकर पहुंचता हूं कि जिन्होंने जमाने की रविश से हटकर जो महसूस किया वो लिखा। बदले में बहुत से जहनों को नई हवाएं दी, दिलों की कसक दूर की, लेकिन उन्होंने क्या हासिल किया, वो समाज के बहुत से माथों पर जो शिकने हैं वो किश्वर नाहिद के लिए दाद से बढ़ती दाद हैं। और किश्वर नाहिद साहिबा मलाला हो या हम गुनहगार औरतें हों, उनकी हर नज्म
उनकी शख्सियत का पता देती है, उनकी नई सोच का, उनके हौसले का पता देती है। दरख्वास्त करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। असल में मैं बेईमान हो गई थी और मुझे एक सरकारी दौरे पर जाना था चाइना परसों, तो मैंने कहा कामना मुझे माफ करो मैं नहीं आ सकती। तो उसने कहा कि मेरी टांग टूटी हुई है और मैं काम कर रही हूँ और आप मेरा दिल तोड़ने वाली बात कर रही हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसके नाम एक नज्म लिख दी। अरे वाह वाह वाह। मेरी जान कामना, तुमने मोहब्बत की किसी दीवार पे लिखा था आ जाओ। मेरी जान कामना, तुमने मोहब्बत की किसी दीवार पे लिखा था आ जाओ। मैं ताल्लुक के सभी रस्तों को तकती, चाहती थी कि बिना वीजे तुम्हारे पास आ जाऊं। बहुत फूली है सरसों और कचनार भी कहती है मुझे भी साथ ले जाओ। बहुत फूली है सरसों और कचनार भी कहती है मुझे भी साथ ले जाओ, मगर वीजे की रेखा पार करने की कोई रास्ता तो बतलाओ। कामना देखो मकई की रोटियां भी सूख ना जाएं, मैं सरसों और कचनार को झूली में भर के इस्तादा हूँ। इधर गेंदे के फूलों को लिए तुम भी खड़ी हो, बहारों के शगुफों को संभाले तुम खड़ी हो। काश खुल जाएं मोहब्बत के ये दरवाजे, बहुत मुश्किल सही लेकिन चलो कोशिश तो करते हैं। वाह वाह वाह। खातिन हज़रात, बहुत रंग की शेर आपने सुने और बहुत रंग की शायरी आपने सुनी, मगर कुछ बिपताएं हैं जो हमारी आपकी कॉमन हैं। वो लोग जो सर उठा रहे हैं, आपके यहाँ कभी खून बहाते हैं और मेरे यहाँ मेरी बच्चियों के स्कूलों को आके धमाके से उड़ा देते हैं। अब तक स्वात से लेकर फाटा से लेकर पिशावर तक के 700 स्कूलों को उड़ा दिया गया है। उसकी वो नज्म को आप लोगों ने सबने फरमाइश की, वो नज्म मलाला के नाम है। वो जो बच्चियों से भी डर गए, वो जो इल्म से भी गुरेज पा, करे जिक्र रब्बे करीम का। वो जो हुक्म देता है इल्म का, करे उसके हुक्म से मावरा ये मना दिया। न किताब हो किसी हाथ में, न ही उंगलियों में कलम रहे, कोई नाम लिखने की जाना हो, न हो रस्म इसमें जना कोई। वो जो बच्चियों से भी डर गए, करे शहर शहर मना दिया कि हर एक कद्दे हयानुमा को नकाब दो, कि हर एक दिल के सवाल को ये जवाब दो। नहीं चाहिए कि ये बच्चियां उड़े तायरों की तरह बुलंद, नहीं चाहिए कि ये बच्चियां कहीं मदरसों कहीं दफ्तरों का भी रुख करें। कोई शोलारू कोई बासिफा है, कोई तो सेने हरम ही उसका मकाम है। यही हुक्म है, ये कलाम है। और आखिरी बंद है, ये वहां जाता है जहां एक बच्चा आया था पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता हुआ। वो जो बच्चियों से भी डर गए, वो यही कहीं है करीब में। इन्हें देख लो, इन्हें जान लो, नहीं इनसे कुछ भी बईद शहर जवाल में। रखो हौसला, रखो ये यकीन कि जो बच्चियों से भी डर गए वो है कितने छोटे वजूद में। वाह वाह वाह। और फिर ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरें, नियाबत इम्तियाज ठहरें, वो दावरे अहले साज ठहरें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो इंफराद ठहरें, नियाबत इम्तियाज ठहरें, वो दावरे अहले साज ठहरें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से शाहराएं हटी मिले हैं। जो बोल सकती थी वो जुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सजाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी। वाह वाह वाह। अब जो दीवार गिर चुकी है इसे उठाने की जिद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। एक गजल पेश करती हूँ, बिल्कुल ताजा है। दिल की दीवार में आईना रखा था किसने, दिल की दीवार में आईना रखा था किसने,
मुझको पहचानते रहने का कहा था किसने? वाह वाह, दिल की दीवार में आईना रखा था किसने? मुझको पहचानते रहने को कहा था किसने? दुश्मने जान तेरे हाथों में तो पत्थर भी न था। क्या कहना है? दुश्मने जान तेरे हाथों में तो पत्थर भी न था, लज़्ज़ते ख्वाब को नमदीदा किया था किसने? वाह वाह वाह, दुश्मने जान तेरे हाथों में तो पत्थर भी न था, लज़्ज़ते ख्वाब को नमदीदा किया था किसने? अब बहुत दूर निकल जाने को जी चाहता है, अब बहुत दूर निकल जाने को जी चाहता है, मुझको जाते हुए दीवाना कहा था किसने? मुझको जाते हुए दीवाना कहा था किसने? और उसकी आंखों में बुलावा ही न था, क्या जाते? उसकी आंखों में बुलावा ही न था, क्या जाते? ऐ शबे हिज्र तुझे साथ किया था किसने? ऐ शबे हिज्र तुझे साथ किया था किसने? और अंजुमन अंजुमन किस्से थे हमारे कल तक, अंजुमन अंजुमन किस्से थे हमारे कल तक, आज वीरानी को आंखों में रखा था किसने? और आखिरी शेर है, नाम तो उसका भला सा था मगर याद नहीं, नाम तो उसका भला सा था मगर याद नहीं, सिसकियां लेके तुझे याद किया था किसने? वाह वाह, दिल की दीवार में आईना रखा था किसने? मुझको पहचानते रहने को कहा था किसने? बहुत शुक्रिया, बहुत शाबाश। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। शायरी के जो नब्ज आशना है वो ये जानते होंगे कि शायरी में इस हुस्न की हिफाजत गजल में हो रही है। और गजल जिसके बारे में शीन काफ निजाम साहब ने कहा था कि गजल एक कैफियत का नाम है, और मैं ये कहता हूं कि गजल की एक कैफियत का नाम प्रोफेसर वसीम बरेलवी भी है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी जिन्हें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NCPUL का वाइस चेयरमैन नामजद किया, तो अभी अभी हमारी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती उन्हें देकर अपने अवार्ड को मुअज़्ज़ज़ बनाया है। हमारी कदर करो ऐ सुखन के मतवालो, हमारी कदर करो ऐ सुखन के मतवालो, गजल को कल न मिलेंगे मिजाजदां हमसे। पूरा पंडाल गूंज कर तालियों की गूंज में इस्तकबाल करे मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी का। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म से आगाज कर रहा हूं और किशोर नाही साहिबा और फहमीदा रियाज साहिबा तशरीफ फरमाएं। उन्होंने जिस कर्ब का इजहार किया है, मेरी छोटी सी नज़्म मुलाजा फरमाएं कि नफरत के साथ